ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ جموں کشمیر وقف بورڈ اور جموں کشمیر پولیس کے درمیان عیدگاہ میدان میں نماز کو لے کر تنازع کشمکش جاری۔ اننت ناگ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات، سجاد احمد ڈار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب۔ دیوسر کولگام میں خاتون کی مبینہ خودکشی، رشتہ داروں نے لگایا قتل کا الزام۔ اور بوسیدہ چنار کے درخت کی وجہ سے اسکولی بچوں کو خطرہ لاحق، والدین نے کیا درخت کی شاخ تراشی کا مطالبہ۔ جموں کشمیر وقف بورڈ اور جموں کشمیر پولیس کے درمیان عیدگاہ میدان میں عید کی نماز کو لے کر تنازع نے وادی میں کشمکش اور کشیدگی والے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ وقف بورڈ نے صاف طور پر نماز پڑھے جانے کا اعلان کر دیا ہے اور مقامی انتظامیہ نے نماز کے تعلق سے اہم جانکاریاں بھی فراہم کر دی ہیں، لیکن جموں کشمیر پولیس نے سیکیورٹی اسباب کا حوالہ دیتے ہوئے اس قدم کو اب تک ہری جھنڈی نہیں دکھائی ہے۔ دراصل تنازع گزشتہ دنوں اس وقت شروع ہوا جب جموں کشمیر وفد کی صدر اور بی جے پی لیڈر درخشاں اندرابی نے اعلان کیا کہ اس سال دفعہ 370 منسوخ ہونے کے بعد پہلی بار تاریخی عیدگاہ میں اجتماعی عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اجتماعی نماز کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد عیدگاہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے درخشاں اندرابی نے کہا کہ اگر موسم نے ساتھ دیا تو نماز ضرور ادا کی جائے گی۔ کشمیر میں اب اچھا ماحول ہے اور انتظامیہ کی کوشش ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ہو۔ جنوبی ضلع اننت ناگ میں ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن انتخابات ٹاؤن ہال اننت ناگ میں گزشتہ روز منعقد کرائے گئے، جس میں سجاد احمد ڈار نے برتری حاصل کی اور انہیں ایسوسی ایشن کے صدر کے طور پر منتخب کر لیا گیا، جبکہ ہلال احمد شاہ کو نائب صدر اور فدا حسین منٹو کو جنرل سیکرٹری عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ چیف الیکشن آبزرور اے سی آر اننت ناگ شعیب نور کے زیر نگرانی انتخابات منعقد ہوئے۔ انتخابات میں سجاد احمد ڈار نے 27 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے حریف میر اشفاق محض 8 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ نائب صدر عہدے کے لیے بلال احمد شاہ نے 27 ووٹ حاصل کیے، وہیں جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے فدا حسین نے 21 ووٹ، جبکہ ان کے حریف فیاض احمد لولو نے 14 ووٹ حاصل کیے۔ انتخابی عمل میں کل ممبران کی تعداد 35 تھی جنہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال بیلٹ کے ذریعے کیا۔ شاہ بلال اور فدا حسین کو وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ تینوں عہدیداروں کی حلف برداری بھی کمشنر ریونیو اے سی آر شعیب نور نے دلائی۔ اس موقع پر نومنتخب عہدیداروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ضلع کے صحافیوں کو درپیش مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ان کی یہ کاوش ہوگی کہ ایسوسی ایشن کو بنیادی سطح پر مضبوط بنایا جائے۔ ہم ضلع انتظامیہ کا خاص طور پہ، کیونکہ یہاں پہ ضلع انتظامیہ کا نام نہ لوں تو شاید یہ میں اپنے آپ کے ساتھ کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ضلع انتظامیہ نے ہمارا بہت زیادہ تعاون کیا ہے اور اے سی آر صاحب جو ہے جو یہاں پہ صبح سے انتظار کر رہے تھے، وہ یہاں پہ تھے، انہوں نے باضابطہ طور پہ اعلان بھی کیا ہے۔ ہم بھروسہ دیتے ہیں ضلع کے لوگوں کو کہ سرکار کے ساتھ ہم ضرور اپنے ضلع کی بات اٹھائیں گے، ضلع انتظامیہ کے ساتھ ہم اپنے ضلع کی بات ضرور اٹھائیں گے تعمیر و ترقی کے حوالے سے۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنے بھی جرنلسٹ کے مسائل ہیں اور جتنے بھی لوگوں کے مسائل تو ہم سرکار اور لوگوں کے بیچ میں ایک پل کی طرح کام کرتے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے جرنلسٹ کے مسائل ہیں وہ بھی ہم مقام بالا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اس میدان میں اتر چکے ہیں، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ جرنلسٹ کے مسائل اور عوام کے مسائل۔ اس موقع پر انہوں نے تمام صحافتی برادری کا بھی شکریہ ادا کیا۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے دین عمران کی رپورٹ۔ جموں کشمیر کے ضلع کولگام کے دیوسر سوپٹ علاقے میں ایک خاتون نے مبینہ طور پر پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔
بتایا جاتا ہے کہ خاتون نے سوپر دیوسر گاؤں میں اپنی رہائش گاہ پر کمرہ بند کر کے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ اطلاعات کے مطابق خاتون کو فوری طور پر ضلع اسپتال کولگام لے جایا گیا، جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ وہیں دوسری جانب جب خاتون کی موت کی خبر ان کے میکے والوں نے سنی تو سارا علاقہ ضلع اسپتال پہنچا اور لوگ سینہ کوبی کرنے لگے۔ لواحقین نے بتایا کہ خاتون کو ضلع اسپتال پہنچایا گیا، تاہم کافی وقت گزرنے کے باوجود بھی ضلع اسپتال کی ٹیم نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا، جس کے بعد مقامی لوگوں نے اسپتال کے مین گیٹ پر احتجاج کیا اور کئی گھنٹوں تک قاضی گنڈ کولگام روڈ کو بند رکھا۔ لواحقین نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کی سنجیدگی سے تفتیش کی جائے تاکہ سچ کا پتہ چل سکے۔ دوسری جانب پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کیس درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ میکے والوں نے سسرال والوں پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے اور قاتل کو سزا دی جانی چاہیے، اور انہوں نے اس کے لیے نعرے بھی لگائے۔ ہر کس اندر اندر 90% کوڑن چلان ٹارچر یم دباوس مز ونت چھن ہکان کی، خاص کر یم بچہ واج تم چھ بچن ہند سوچان واریا یمن مالی سازر چھ کوڑن تم چھ دم پھٹ گامژ تم چھن ہکان مالن ونت کی دبا کیا پتہ تت چھ بے کاکنہ تت چھ بوے تس تہ چھ کوڑ سارنی چھ نیوی مالن اخ کوڑ اخ ماجن ستی گژھِ گژھن انصاف کوڑ ستی بیٚنہِ سۭتۍ اگر قونوٗن چھُ لڑی پٮ۪ٹھ مردس پٮ۪ٹھ کیازِ چھُنہٕ قونوٗن قونوٗن چھُ ہر کٲنٛسہِ مگر أسۍ چھِ ونان یُتُے سانہِ کورِ سۭتۍ گوٚو ظُلم سۄ تہِ گٔے وۄنۍ مگر برونٛٹھ کُن گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ مےٚ لیکھٕ تٔمِس چھَنہ تٔمِس سۭتۍ بیان اگر قونوٗن چھُ لڑی پٮ۪ٹھ مردس پٮ۪ٹھ کیازِ چھُنہٕ قونوٗن قونوٗن چھُ ہر کٲنٛسہِ مگر جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے لاسی پورہ علاقے میں آج CRPF 182 بٹالین کی جانب سے ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ طالب علموں نے بڑے تعداد میں شرکت کی۔ اس مفت طبی کیمپ میں مقامی لوگوں اور اسکول کے بچوں میں مفت ادویات تقسیم کی گئیں، جبکہ ڈاکٹروں نے طبی معائنہ کر کے صلاح و مشورہ بھی دیا۔ اس طبی کیمپ میں زیادہ تر مقامی لوگوں، بزرگ شہریوں، نوجوانوں اور خواتین کا علاج معالجہ کیا گیا، ساتھ ہی انہیں مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر مقامی لوگوں اور اسکولی بچوں نے CRPF 182 بٹالین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے علاقے میں اس طرح کے کیمپ اور منعقد ہونے چاہیے، جس سے مقامی آبادی کو ممکنہ مدد مل سکے، ساتھ ہی مفت ادویات اور صلاح و مشورہ بھی مل سکے، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مقامی لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کیمپ ہر بار منعقد کیے جانے چاہیے تاکہ دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر CRPF 182 بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر دیپک دھونلیال نے بتایا کہ CRPF اس سے پہلے بھی مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کر چکی ہے اور آج بھی عوام کو راحت دینے کے لیے اس کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہاں کی جو لوکل جنتا ہے ان کے دروازے تک ہم دوائی اپلبدھ کرا پائیں، اس پہ پلوامہ ہاسپٹل اور 182 بٹالین کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی مدد سے ایک فری میڈیکل کیمپ آیوجت کیا گیا ہے۔ اس میں ڈاکٹرز ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی ضرورت کے آدھار پر ان کو دوائیاں دے رہے ہیں۔ اس طریقے کے کاریہ ہم لوگ سمے سمے پر الگ الگ استھانوں پہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج یہ لاسی پورہ میں یہ کاریہ آیوجت کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ CRPF طبی کیمپوں کے ساتھ ساتھ کھیل کود کے مقابلے بھی کروانے جا رہی ہے، جس میں نوجوانوں کو شامل ہونے کی دعوت بھی دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں عوام اور CRPF کے درمیان تعلقات بہتر ہیں۔ میڈیکل کیمپ کے علاوہ انیہ پرکار کے بھی کئی کلیانکاری یوجنائیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں، جیسے کہ ایک جو ہماری یوجنا میں ہے وہ ہے اسپورٹس ٹورنامنٹ کرانا۔ ایک والی بال ٹورنامنٹ کرانے کا پرستاوت ہے۔ رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس والی بال ٹورنامنٹ کو پلوامہ میں یونٹ ہیڈ کوارٹر میں آیوجت منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ سے سید عادل کی رپورٹ۔ سڑکو لاسی پورہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں کارخانہ داروں کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ سے مداخلت کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سب سے بڑا صنعتی مرکز ہے، جہاں پر 300 سے زائد چھوٹے بڑے کارخانے موجود ہیں، جن سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ تاہم ان چھوٹے بڑے کارخانہ داروں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن کو حل کرنے کی انہوں نے مرکزی سرکار اور ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ ضلع کے ڈسٹرکٹ انڈسٹری سینٹر پلوامہ یعنی DSC پلوامہ کے جنرل مینیجر کا تبادلہ کیا گیا، جس کے بعد اس کی کرسی خالی ہو گئی ہے۔
अगरचे वादी के सबसे बड़ी सनत मरकज़ के लिए इस अफसर का होना ज़िले में ज़रूरी है, लेकिन आज तक इस अफसर को यहाँ पर तैनात ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से सनत मरकज़ का कामकाज ठप पड़ा है और कारखानादारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस ज़िम्न में जम्मू कश्मीर सिडको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपुरा के जनरल सेक्रेटरी सरवर मलिक ने बात करते हुए कहा कि सिडको लासीपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सनती मरकज़ है और सरकार भी कारखानादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करती है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल स्टेट में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल स्टेट सड़क राबता नहीं है, बिजली की आंख मिचौली जारी है और दीगर मसलों का भी सामना करना पड़ता है। वहाँ इस वक्त जीएम का जो पोस्ट है वो वैकेंट है पिछले 15 दिनों से। हमने 2 बार हमारे जो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब है उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें मेल भी भेजा, एट द अर्लीस्ट हमें जीएम वहाँ भेजे, लेकिन अभी तक उनका वो पोस्ट वैकेंट है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द हमें यहाँ एक जीएम वागुजार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कारखानादारों को माली इमदाद के लिए यहाँ पर मजीद बैंकों को लाया जाना चाहिए ताकि कारखानादारों को वक्त पर आसान किस्तों पर कर्जाजात फराहम किए जा सकें। इस मौके पर जम्मू कश्मीर सिडको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपुरा के सरबराह हाजी मुजफ्फर ने बात करते हुए कहा कि सरकार ने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पुलवामा यानी DSC पुलवामा के जनरल मैनेजर का तबादला किया, जिसके बाद हमने सरकार को लिखा था कि वो जनरल मैनेजर की तैनाती अमल में लाए, लेकिन अभी तक इसमें कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। जो गवर्नमेंट है वो हमें सपोर्ट करती है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़ते हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस हैं। रोड कनेक्टिविटी नहीं है और इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी है और काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जैसे फाइनेंसिंग रिलेटेड। जो हमारा जो J&K बैंक है वो काफ़ी वो सपोर्टिव नहीं है टुवर्ड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी एक पॉलिसी फ्रेम करे अभी के टाइम के लिए कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो फ्लरिश हो सके, ग्रो हो सके और डेवलप हो सके। उन्होंने कहा कि जनरल मैनेजर न होने की वजह से 300 से ज़ायद कारखानादारों को मुश्किलात का सामना है और उन्होंने फिर एक बार गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि वो जनरल मैनेजर को ज़िले में तैनात करवाने की जल्द अज जल्द इक़दाम उठाएं। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। ज़िले के अछन में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के गिरदोनवा में चिनार के दरख्त मौजूद हैं। चंद चिनार के दरख्तों का ऊपरी हिस्सा बोसीदा हो चुका है, जो हल्की आंधी बारिश या किसी जानवर के बैठने से भी ये शाखें टूट सकती हैं, जिसकी वजह से स्कूल अहाते में मौजूद बच्चों को जान का खतरा लाक है। स्कूल इंतज़ामिया ने इस चनार के दरख्त की शाख तराशी करवाने के लिए महकमे माल को गुज़िश्ता साल लिखा था, लेकिन 10 माह गुजरने के बावजूद भी उन्होंने शाख तराशी की इजाज़त नहीं दी, जबकि बोसीदा चनार का दरख्त स्कूली बच्चों के लिए वबाल जान बन गया है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनको इस बात की समझ भी नहीं है कि अगर वो इस चनार के दरख्त के पास खेलने जाएंगे तो इनके साथ क्या हो सकता है। इस ज़िमन में वालिदैन ने बात करते हुए कहा कि हमने अपने बच्चों को दाखिला इस सरकारी स्कूल में करवाया है, लेकिन इसके स्कूल के अहाते में चनार का दरख्त मौजूद है जिसकी ऊपरी शाखें बोसीदा हो चुकी हैं, जिससे हमारे बच्चों को जान का खतरा लायक रहता है। बच्चे पढ़ान बून ये स्कूल सत्य लंजि तो कुछ वाव तूफान अगर वस पे तो बच्चन ग जानी नुकसान तो कुन सात वाव या शीन या रूद कुन सात बोन खतर लकट मौसम बच्चन पे मौसम बच्चे बन कह पढ़ान इन पे खतर इन खोदन या लंड पे कह पे अगर कौन बच्चे मर पे मास्टर्स बारी। इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे ज़ेर तालीम हैं और स्कूल के सरबराह ने भी इस ज़िमन में सरकार को लिखा है, लेकिन आज तक कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि वह इस बोसीदा चनार के दरख्त की शाख तराशी को जल्द अज जल्द मंजूरी दें ताकि बच्चों को हिफाजत से रखा जा सके। इस ज़िमन में स्कूल के सरबराह ने बात करते हुए कहा कि 2 साल से इस चनार के दरख्त की शाखें बोसीदा होने लगी हैं और इससे ये शाखें अपने आप या फिर किसी जानवर के बैठने से टूट जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को जख्मी होने का खतरा लायक रहता है, क्योंकि बच्चे स्कूल के अहाते में खेलते हैं या फिर किसी दूसरे काम में मशगूल होते हैं।
उन्होंने कहा कि 10 माह कबल मैंने इसकी शाख तराशी के लिए महकमे माल को लिखा था और 10 माह गुजरने के बावजूद भी हमें इजाज़त नहीं मिल रही है। उन्होंने महकमे तालीम के आला अफसरान से अपील की कि वे इस मसले की जानिब तवज्जो दें और बच्चों को महफूज रखने के लिए इक़दामात उठाएँ। पिछले 2 सालों से इसकी कुछ टहनियाँ ऊपर वाला हिस्सा सूखने लगा। जब ये ज़्यादा सूखा तो इससे ये टहनियाँ गिरती हैं, नीचे बच्चे खेलते हैं या MDM का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अगर अचानक ये टहनी गिर जाए तो किसी बच्चे को का जानी नुकसान हो सकता है। जुलाई 2022 से मैंने ये केस पटवारी, गिरदाबार, नायब तहसीलदार और तहसीलदार शाहौरा के हवाले से DC ऑफिस पहुंचाया, लेकिन अभी तक ये चंद शाखें काटने का हुक्म हमें नहीं मिल रहा है। लिहाजा आपकी वसातत से मैं हुकाम से गुजारिश करता हूं कि हमें जल्द से जल्द ये सूखी शाखें काटने का हुक्म दे दिया जाए। वादिय कश्मीर में जहां सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार बेहतर हो रहा है, जिसकी वजह से मकामी आबादी अब प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवा रही है, वहीं महकमे तालीम भी बच्चों को नज़दीकी सरकारी स्कूलों के हवाले से दाखिला ड्राइव का भी इनेकाद कर रहा है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिल रहा है। वहीं इन सरकारी स्कूलों में महकमे तालीम की जानिब से हर एक मुमकिना सहूलियत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। ताहम कुछ स्कूलों की जानिब तवज्जो मरकूज़ नहीं की जा रही है, जिनमें अछन का गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल काबिल ज़िक्र है। मुनसिफ TV के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। नुज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस का उन्वान था कुरान मजीद एक नुस्खे कीमिया। मुकाबले के लिए मुकर्रर किए गए जजों के फैसले के मुताबिक तीनों पोजीशनें इन 3 तालिब इल्मों को दी गई। पहली पोजीशन सैनिक स्कूल मनासबल के अमीर मकबूल ने हासिल की, दूसरी पोजीशन JNV हथबुरा गांदरबल के साजिद रमज़ान ने और तीसरी पोजीशन कमरिया हायर सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सलोरा गांदरबल की साकिया वानी। इसके अलावा दीगर शुरका भी मौजूद थे। इनको तसल्ली बख्श भी इनामात दिए गए। काजी अब्दुल क़य्यूम ने कमरिया हायर सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की सकाफ़ती, समाजी और ख़ास तौर पर इस्लामी सरगर्मियों के हवाले से मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमात को सराहा, जिसका मकसद आला इंसानी और अखलाक़ी अक़दार हैं, जिन पर अगर खुलूस नीयत के साथ अमल किया जाए तो ये आज के बुरे मुआशरे को इंतहाई अखलाक और आज़ादी की तरफ मुंतकिल कर देगा। हुई बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे कुरान के हवाले से बहुत सारी नॉलेज हमें हासिल हुई। यहाँ पे चीफ गेस्ट भी आई थी, अवार्ड्स भी मिले हमें अल्हम्दुलिल्लाह। और चूंकि आज का दौर जो हम जा रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज को ज़्यादा जा रहे हैं और कुरान को छोड़ के, आज इस कॉन्फ्रेंस से हमें बहुत सारी नॉलेज मिली। साइंस के रिलेटेड भी, कुरान में क्या अल्लाह पाक फरमा देते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के बारे में भी बहुत कुछ मालूम हुआ, इस्लाम का रियलिटी में मतलब क्या है वो हमें मालूम हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी प्यारी कॉन्फ्रेंस थी। पूरा यकीन है कि हमारे लड़के, हमारे बच्चे और बच्चियाँ कुरान के समझेंगे, कुरान पर अमल करेंगे, उससे न सिर्फ हमारा समाज, हमारे घर, बल्कि हमारी रियासत और बल्कि पूरी दुनिया जो है वो एक अमन। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के तहसील हेडक्वार्टर सोपोर के तहसील डांगरपुरा में आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर साद शहरिश, NCD बारामूला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला सोपोर, तहसीलदार डांगरपुरा, BDO डांगापुरा की क़यादत में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का अहतमाम करके आम लोगों के मसले सुने गए और इनका इजाला करने के लिए आला अफसरान को मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई गई। इस दौरान मकामी लोगों ने सरकार और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि गुज़िश्ता सालों से काफ़ी तरक्याती काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको उम्मीद है कि इस किस्म के प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी होंगे ताकि हमारी मुश्किलात दूर हो सकें। और इसका मेन मकसद यही है कि हम लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुने और साथ में जवाब जो है वो डिपार्टमेंट से हम लेते हैं और मौके पे इंस्ट्रक्शंस उनके पास हुई। बहुत सारे मसले यहाँ पे उन्होंने जो उठाए हैं उनका हमने मौके पे इजाला किया। कुछ हॉस्पिटल के मसले थे, कुछ हमारे PHE के थे, RMD के थे, RDD के थे। कंसर्न्ड ऑफिसर्स को डायरेक्शंस भी पास हुई हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ रही कि PRIs ने अपना भी रोल बताया कि उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं, डिपार्टमेंट्स ने अपना बताया कि उन्होंने क्या क्या प्लान में रखा है और पिछले साल उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। इससे हमने IC एक तरह से एक्टिविटी भी करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि डिपार्टमेंट्स क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही हैं और लोगों में भी इससे जानकारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोग्राम था ये हम
दिवस के हिसाब से मनाते हैं। ब्लॉक दिवस का यही रहता है कि जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं लोगों की वो हायर अपर्स के सामने रखेंगे, जिनकी और जो भी डिमांड्स होती हैं डीसी साहिबा आज खुद आई थी, जितना भी हुआ है उससे कुछ डिमांड्स का उन्होंने अजाला मौके पे ही किया है। इस सिलसिले में हम शुक्रिया करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खुसूसन डिप्टी कमिश्नर बारामूला का और बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स का। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने मुमकिना कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में अलहदा और आईसी बिस्तरों को मखसूस रखा है। महकमे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक कश्मीर सूबे के 18 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीज़ों के लिए 224 अलहदा और 320 आईसी बिस्तर तैयारी की हालत में रखे गए हैं। हल्का इंतखाब बीजबहाड़ा में कायम नरामा अस्पताल में कोविड 19 की चौथी लहर के पेश नज़र महकमे सेहत की जानिब से तमाम तर सहूलियात का जायज़ा लिया गया। इस दौरान CMO अनंतनाग MY जागू और महकमे सेहत के कई एहलकारों ने मरीज़ों के साथ साथ अस्पताल के मुख्तलिफ सहूलियात का जायज़ा लिया, जबकि इस मौके पर CM ने कहा कि डरने की बात नहीं है बल्कि एहतियाती तदाबीर बरतने पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि ट्रॉमा अस्पताल बीजबहाड़ा को पहले ही कोविड अस्पताल करार दिया गया है, जिसमें कोविड मरीज़ के लिए तमाम तर सहूलियात मैसर रखी गई हैं। इस वक्त हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सारा सिस्टम इंटैक्ट है, सब कुछ फंक्शनल है, घबराने की कोई बात नहीं। इस हमेशा आते रहेंगे कि कोविड अभी भी हमारे दरमियान है, लेकिन इसमें एक खास खसूसियत ये है कि हम 100% वैक्सीनेटेड है और लोगों से यही गुजारिश है कि वो घबराएं मत, पैनिक मत हो जाए। अगर किसी को अलामत लगे वो नज़दीक के हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर साहब से रब्ता करें और अपना टेस्ट कराएं। खासकर वो एहतियात से काम लें। एहतियात इसीलिए कि समाजी दूरी इख्तियारी करें और मास्क का इस्तेमाल करें भीड़ भाड़ वाले इलाके में और सफाई रखें। महकमे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल ने गांदरबल ज़िले के आरमपुरा इलाके में डैची नहर को साफ़ करने का काम शुरू किया है। आरामपुरा और उसके मुल्हिक़ इलाक़ों ने बुध को इलाके में दापची आबपाशी की नहरों की सफाई शुरू करने पर महकमे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों का कहना था कि हम महकमे आबपाशी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 5 साल से ज़ायद अरसे के बाद आबपाशी की नाली की। उन्होंने कहा कि सफाई शुरू की है कि कचरा जमा होने की वजह से पानी का बहाव कम हो गया है, क्योंकि नहरों को गुज़श्ता 5 साल से कभी साफ़ नहीं किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह मकामी लोगों का देरीना मुतालबा था कि इस इलाके में आबपाशी की अहम नहरों को साफ़ किया जाए, जो हमारे ज़रूरी खेतों एग्जीक्यूटिव को पानी सैराब करते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल राकेश चंगोत्रा ने कहा कि हमने आरमपुरा इलाके और मुल्हिक़ इलाक़ों में दापची कैनाल को साफ़ करना शुरू कर दिया है और हमारी आवाम से दरख्वास्त है कि कचरा नहर में न डालें। उन्होंने कहा कि इससे आबपाशी कैनाल से आने वाली बदबू की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इस साल का हम लोगों ने ये दूसरा कैंप यहाँ लगाया है जदूरा में, जो पहली बार हम लगा रहे हैं। और इसमें बेसिकली हमारा मकसद ये रहता है कि दूर दराज के इलाके में जाएं और जो लोग प्राथमिक के उपचार से वंचित रह जाते हैं, जो हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं, तो हम खुद ही वहाँ जाएं। हमारे डॉक्टर्स आते हैं, HDS से भी आ जाते हैं और आकर के इनका भी जो रोज़मर्रा का उपचार संबंधी उपाय करने हैं वो करते हैं और साथ में ज़रूरी दवाएं भी लगा देख करके यहाँ पे आएँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो वो भी CRPF के तरफ पे और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और जम्मू कश्मीर पुलिस के दरमियान ईदगाह मैदान में नमाज को लेकर तनाज़ा कशमकश जारी। अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबात, सज्जाद अहमद डार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। देवसर कुलगाम में खातून की मुबैना खुदकुशी, रिश्तेदारों ने लगाया कत्ल का इल्ज़ाम। और बोसीदा चिनार के दरख्त की वजह से स्कूली बच्चों को खतरा लाहक, वालिदैन ने कहा दरख्त की शाख तराशी का मुतालबा। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।